دودھ ہے اور ہمارے گھروں میں یہ دودھ زیادہ تر دودھ والا دے کر جاتا ہے. یہ دودھ والا اس میں کیا کیا ملاوٹ کرتا ہے یہ سب کچھ دکھائیں گے آج کے پروگرام میں. میں ہوں علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرم کون. اگر بات کی جائے کھانے پینے کی تو ہمارے پاس اس کے لیے بہت سے آپشنز موجود ہوتے ہیں, کبھی گھر کا تو کبھی باہر سے. مگر دودھ کے لیے یا تو ڈبے کا دودھ یا پھر اس گوالے کا جو کہ گھر گھر جا کر دودھ فراہم کرتا ہے. اور اس کھلے دودھ میں ملاوٹ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. مختلف کیمیکلز ملا کر اس کھلے دودھ کو گاڑھا کیا جاتا ہے, پانی ملا کر اس دودھ کی مقدار میں اضافہ کیا جاتا ہے, اور تو اور کیمیکل سے بنا ہوا آرٹیفیشل دودھ بھی ہمیں پلایا جاتا ہے جو کہ ہیپاٹائٹس اور کینسر جیسے موذی امراض کا موجب بنتا ہے. اور بات کی جائے ڈبے کے دودھ کی تو ٹی وائٹنر کی صورت میں عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں ملتان NLC بائی پاس جو کہ مین روڈ ہے, اور مین روٹ ہے کس طرح سے کیا جاتا ہے, کیا ڈیٹیلز ہیں اور اس سے کیا کیا چیک ہو جاتا ہے. اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کے ٹیسٹ یہ کیا جا رہا ہے, یہ ٹیسٹ کر لیں, اس کے بعد اس کی تفصیلات, اس کی ڈیٹیلز لیں گے. ایک اور دودھ والا ہے جس کو روکا گیا ہے, ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں, اس سے بھی بات کرتے ہیں. جو دودھ آپ گھر میں پیتے ہیں, اپنے بچوں کو پلاتے ہیں, خود پیتے ہیں, وہ دودھ آیا کتنا خالص ہے, اس میں کتنی ایڈلٹریشن کی گئی ہے, اس حوالے سے جانیں گے آج کے پروگرام میں. ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر طاہر سعید بھی موجود ہیں. کتوں آئے ہو تو سر؟ میں متی تل تو آئے ہو. کتنا دودھ گھن کے ویندے ہو روز, کتنا ویندے ہو؟ 60 کلو دودھ گھنٹے گھر ویندے. گھنٹے گھر ویندے ہو, گھر ہی دیندے ہو یا کسی دکان سے؟ ایک دکان تے دینے دودھ ہے, باقی کوئی بھی 1 کلو گھر دینے. اچھا, تے بالکل خالص ہوندے؟ چیک کر لو, بالکل پیور ہو. ناظرین, ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ان کا دودھ ہے بالکل پیور ہے, بالکل خالص ہے. لیکن یہ بات پتہ چلے گی جب ہم ٹیسٹ کر لیں گے, اس کے بعد ہی پتہ چلے گی کہ آیا کتنا خالص ہے, کتنا پیور ہے. ان کا بھی سیمپل لیا جا رہا ہے. یہاں پر فوڈ اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر طاہر سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی, آپ کو پتہ ہے کہ دودھ بنیادی غذا ہے, وہ ہر بچے کے لیے اور بوڑھے کے لیے اور جوان کے لیے بھی. اب دودھ کی جو کمپوزیشن ہے اس کو جیسے ہی بدل دیا جاتا ہے اڈلٹریشن کرنے کے بعد, تو وہ جتنی مفید خوراک ہے اتنی ہی وہ مضر ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے آپ بیسیکلی بچوں کو دیتے ہیں تو بچوں پہ یہ کیا اثرات کرے گی. ایک چیز ہے جو یہ لوگ دودھ کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, فارملین. اور آپ کو اگر کامنلی ایک چیز ہم انڈیکیٹ کریں یا بتائیں کہ یہ مردے جس کو سیف رکھنا ہونا, اس کے اوپر فارملین لگائی جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ دیر تک یا تو اس کو پریزرو ہو جائے, جس طرح سے پھر ینگ ڈاکٹرز نے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے تو وہ لوگ کر سکیں, یا دوسرے لوگ جس کو بھی جو بھی ضرورت ہو, تاکہ وہ لمبے عرصے کے لیے. تو دودھ میں ڈالنے سے اس کا جو مائکرو فلورا ہے نا, وہ ختم ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے وہ خراب نہیں ہوتا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہفتے کا ہو یا جتنا بھی پرانا دودھ ہو وہ آپ کو پلا سکتے ہیں. اب جب آپ اس کو انٹیک کریں گے, پئیں گے, تو وہ آپ کے اندر جو مائکرو فلورا ہے اس کو بھی ختم کر دے گا. اب مائکرو فلورا کا جو حساب ہے, کچھ بہت سارے اندر آپ کے جراثیم پائے جاتے ہیں جو آپ کی باڈی کے لیے صحت مند ہوتے ہیں اور وہ ضروری ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوتے ہیں. جب وہ مائکرو فلورا ختم ہو جاتا ہے تو آپ کی جو گروتھ ہے وہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہوتی ہے. یہ ٹیسٹ پہلے تو مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ ہے کیا, اس سے کیا کیا چیک ہوتا ہے؟ بیسیکلی دودھ کے اندر مختلف قسم کے اڈلٹریشن ہیں, اس میں کیمیکل اڈلٹریشن ہے اور واٹر اڈلٹریشن ہے. یہ جو دودھی حضرات ہیں اس کے اندر جو موسٹلی سب سے زیادہ جو اڈلٹریشن ہوتی ہے وہ واٹر کی اڈلٹریشن ہوتی ہے. تو واٹر کی اڈلٹریشن کو چیک کرنے کے لیے ہم ان کی اسپیسیفک گریوٹی اور اس کی چیک کر رہے ہیں لیکٹومیٹر کے ذریعے. تو ابھی ہم نے 3 واٹر چیک ہوتا ہے, واٹر چیک, پانی کتنا ملایا گیا ہے. ہاں جی, تو ابھی ہم نے 3 سیمپل چیک کیے ہیں, 3 دودھیوں کے ہم نے سیمپل چیک کیے ہیں. تو ابھی ایک بندہ میں پرابلمیٹک ملا کہ اس کے اندر واٹر کے اڈلٹریشن ہے,
تو اس پہ ابھی ہمارا یہ ڈیسیجن ہے کہ اس کا جتنا بھی دودھ ہے اس کو ہم ڈرین کریں گے. اور باقی جو دوسرے تھے اس کے علاوہ جو ہم نے شوگر ٹیسٹ کیا ہے, فارملین ٹیسٹ کیا ہے, وہ چیزیں جو کیمیکل اڈلٹیشن ہے وہ ان کی نیگیٹو آ رہی ہے, مطلب اس میں کسی یعنی کہ قسم کے ان adulteration تینوں سیمپلز میں جو ہم نے رینڈملی ابھی لیا ہے ان تینوں میں کسی نے کوئی کیمیکل کا آمیزش نہیں کی. ہاں جی, جو یہی واٹر کہنا کی چاہ رہے ہیں. ڈلٹیشن اور عام طور پر جو دودھی حضرات ہوتے ہیں, جو ملک ہینڈلرز ہوتے ہیں, ان کا جو سب سے نیئرسٹ سورس ہوتا ہے ڈلٹیشن کا وہ واٹر ہوتا ہے موسٹلی. تو اس میں ایک ہمارے پاس سیمپل جو ہے ایسا پرابلمٹک ہم نے پکڑا, تو ابھی اس کو ہم ڈرین کروائیں گے. اوکے, تھوڑا سا مجھے اس ٹیسٹ کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز بتا دیں گے کہ آپ کو کس طرح سے پتہ چلا کہ اس میں پانی تھا اور کتنا پانی تھا, کتنی پرسنٹیج تھی واٹر کی. بیسیکلی یہ جو انسٹرومنٹ ہے اس کو ہم لیکٹومیٹر کہتے ہیں. لیکٹومیٹر کہتے ہیں. یہ ڈیزائن کیا گیا ہے دودھ کی اسپیسیفک گریوٹی کو بتانے کے لیے. صحیح. ٹھیک ہے, پھر اس کا ایک فارمولا ہے, اس فارمولے کے اندر پٹ کرتے ہیں, اور جو ملک ہوتا ہے اس ملک کی جو پیور ملک ہوتا ہے اس کی ایک اسپیسیفک ویلیو ہوتی ہے, مطلب وہ 25 سے لے کر 30 تک ویری کرتی ہے. 25 سے لے کر 30 تک ویری کرتی ہے. تو جو منیمم ہوتی ہے ہم اس پہ جو ہے نا اس کو ڈسکارڈ کرواتے ہیں. ہاں جی. صحیح. سے کیا شو ہو رہا ہے, عام زبان میں کیا کہیں گے, کتنی پرسنٹیج اس میں جو ہے پانی کی ملاوٹ کی گئی ہے؟ پرسنٹیج ایز سچ تو نہیں ہم کہہ سکتے, لیکن جو ایل آر ہے وہ ہونی چاہیے 28 to 33. تو یہ 21 ہے, اس سے آپ آئیڈیا کر لیں گے کتنی اس میں کم ہے. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ ملاوٹ ہے اس میں واٹر کی ڈلٹیشن ہے. اوکے. ہاں جی. صحیح. واٹر کے علاوہ کسی اور قسم کی اڈلٹریشن؟ باقی ہم نے اس کی کیمیکل ٹیسٹنگ کی ہے. کیمیکل ٹیسٹنگ اس میں ہم نے فارملین کیا اور ڈٹرجنٹ اس کا کیا ہے. وہ اس کے پاس اڈلٹیشن نہیں ہے. تو کیونکہ پانی کی اڈلٹیشن ہے, پانی کی اڈلٹیشن کے اکارڈنگ ہم اس کا ایکشن لیں گے, ہم اس کا دودھ ڈسکارڈ کریں گے. ڈسکارڈ کریں گے. صحیح. ناظرین, ان کے دودھ میں پانی تھا کافی مقدار میں. ہم نے اس کو ری چیک بھی کیا. ان کے مختلف ڈرمز ہیں, یہاں پر مختلف برتن ہیں اور مختلف ٹیسٹ کیے گئے. ان کو کیمیکل نہیں ہے لیکن پانی کی اڈلٹریشن ثابت ہوئی ہے, چیک ہوئی ہے, اور اس دودھ کو ضائع کیا جائے گا یہاں پر کیونکہ یہ اڈلٹریٹڈ دودھ ہے. کیا حال ہے بھائی؟ اللہ پاک دا کرم کتوں آندے پئے ہو؟ میں سر جی کہڑے پاسوں آندے پئے ہو؟ اس سائڈ تو آ رہے ویڑی چوک دی سائڈ. اچھا, کتھاں ویندے ہو, کتھاں گھر دیندے ہو یا کہیں دکان تے؟ نہیں سر میں دینا دو دکاناں تے بھی دینا تے گھر وچ بھی دو دینا. اچھا, بالکل جی. خالص ہو جاتے ہو؟ بالکل خالصہ جی, اپنی مچاں دا. اچھا, اپنی مجھے جی, جی. چیک کر بیس ہوئے؟ جی سر, چیک کرا سر. ناظرین, یہ سیمپل دینے کے لیے آمادہ ہیں اور سیمپل لیا جائے گا ان کا یہاں پر اور اس کے بعد چیک کیا جائے گا. ٹوینٹی ایٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دودھ جو ہے نا ایز کمپیئر ٹو پریویس سیمپل, اس کا دودھ جو ہے نا پریویس 21 تھا, 22 تو اس کے اندر واٹر کی اڈلٹیشن نہیں ہے. اور نارملی جو ملک کی ایل آر ہوتی ہے وہ تقریباً ویری کر رہی ہوتی ہے 26 سے لے کر 30 تک. تو منیمم جو تھوڑا سا مارجن آپ دیتے ہے ہیں, ان کو فریڈم دیتے ہیں freedom اتنا دیتے ہیں اس کو. کہ تھوڑا بہت ریلیکسیشن دی جائے. جی جائے, لیکن جو کم ہوتی ہے اس پہ ہم ان کو ریلیکس نہیں کرتے. صحیح صحیح. ابھی ہم اس وقت ان کا 28 آیا, اس کے بعد آپ فارمولین کا ٹیسٹ کر رہے ہیں جس میں یہ پتا چل جائے گا کہ کسی قسم کی کوئی کیمیکل تو نہیں ملا ہے. کیمیکل کے اڈلٹیشن کو چیک کرنے کے کیمیکل بیسیکلی زیادہ ہیں. ہم جو موسٹلی اور کامنلی مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں, مارکیٹ جہاں تک ان لوگوں کی ایکسیس جلدی ہوتی ہے, تو اس میں فارملین ہے, وہ ہمیں بھی اس کا ٹیسٹ پرفارم کر کے دیکھتے ہیں. یہ نیگیٹو ہے. ہاں جی. بیسیکلی جب اگر اس میں فارملین کی ایڈیشن ہوگی تو یہ جو دونوں لیئرز ہیں دودھ کی اور کیمیکل کی جو لیئر ہے, ان دونوں لیئر جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہیں, یہاں پہ پرپل کلر کا جو ہے نا رنگ سٹرکچر بن جاتا ہے. پرپل کلر اپیئر ہوگا. اگر تو اس کے اندر فارملین کی ایڈیشن ہے تو وہ یہاں پہ پرپل کلر کا رنگ سٹرکچر بنے گا. لیکن یہ آپ کے سامنے ہے, یہاں پہ کوئی کسی قسم کا پرپل کلر کا رنگ سٹرکچر ڈیولپ نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر فارملین کی ایڈیشن نہیں ہے. یہ کیمیکل اس کے اندر کسی قسم کی اڈلٹیشن نہیں کی گئی. جو فارملین ہے وہ اس کا نیگیٹو ہے. ایک سیکنڈ, یہ بیکر دکھائیے گا ناظرین. میرے ٹیسٹ ٹیوب ہے. اوکے, ٹیسٹ ٹیوب میرے ہاتھ میں ہے جس میں
चेक किया गया है कि किसी किस्म की एडल्ट्रेशन, केमिकल एडल्ट्रेशन तो नहीं है इसमें, और चेक करने के बाद इन्होंने यही बताया है कि इसमें किसी किस्म की केमिकल एडल्ट्रेशन नहीं है। और पानी का टेस्ट भी इन्होंने किया है, तो पानी का टेस्ट भी नेगेटिव आया है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने घर में ही दूध में की गई मिलावट कैसे चेक कर सकते हैं, मगर इस ब्रेक के बाद। ताहिर भाई, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ देते हैं दूध? जो मुल्तान देते हैं। मुल्तान देते हैं, घर में देते हैं या किसी दुकान पे? दुकान पे देते हैं। दूध आपका बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितना दूध लेकर जाते हैं? तकरीबन 1 मन होता है। 1 मन 40 किलो दूध आप डेली बेस के ऊपर सप्लाई करते हैं मुल्तान में दुकान पर? जी। ऐसे ही है, मिलावट नहीं है किसी किस्म की? नहीं है। गारंटी बात है जी। हम यहाँ पर लैब में टेस्ट कर रहे हैं। जी जी। अगर आपका दूध मिलावट वाला निकला तो हम यहीं पर जाया कर देंगे। जी जी। ओके जी, इनका कहना है कि मिलावट वाला नहीं है, तो आए चेक करते हैं। आज पता चलेगा कि जो दूध हम घर में अपने बच्चों को देते हैं, खुद पीते हैं, उसमें कितनी मिलावट है और वो कितना हाइजीनिक है। इस हवाले से आज का प्रोग्राम हमारा आप देख रहे हैं, और इनकी डिटेल्स भी ली जाती हैं। फूड जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं इस वक्त यहाँ पर, उनसे डिटेल्स भी ले रहे हैं, उनका बायोडाटा भी ले रहे हैं। उसके बाद चेक किया जाता है, सैंपलिंग की जाती है, और सैंपलिंग का टेस्ट ऑन द स्पॉट किया जाता है। हमने इसके दूसरे पोर्शन की भी चेक की है। एक पोर्शन जो है वो अडल्टेटेड है, दूसरा पोर्शन हमने चेक किया वो बिल्कुल ओके है। तो जो अडल्टेटेड है वो हम डिस्कार्ड करेंगे, जो दूध इनका ठीक है उसको हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे। लेकिन इसको अगर दोबारा रीसैंपल किया जाए उस बर्तन को, एक दफा अगर दोबारा सैंपल कर लें, हाँ वही इशू निकाल लेते हैं। सही। नाज़रीन, इन्होंने इस वक्त टेस्ट जो परफॉर्म किए हैं उसमें एक बर्तन में मिलावट साबित हुई है, दूसरे में नहीं हुई। आपके एक बर्तन में जो रिजल्ट आ रहा है वो ठीक है, दूसरे में मिलावट है, क्या वजह है? देखिए, अब घर से लेते हैं, अब मैंने तो कुछ तो मिलावट तो नहीं किया आपने अपनी नजर में, तो मैंने यही है कि अब हम इसको रीचेक करने के लिए, दोबारा चेक करने के लिए, ताकि कोई शक व शुबे की गुंजाइश ना रह जाए, दोबारा यहाँ पर सैंपल लेंगे और दोबारा टेस्ट करेंगे। है जो आपने पहले टेस्ट किया था, उसकी भी 22 थी, लेकिन जो दूसरा बर्तन है उसकी 26 आई है। हाँ जी। ओके, ये रीडिंग इन्होंने चेक की है और रीडिंग में 22 है, अडल्ट्रेटेड साबित हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा फार्मूलिन का टेस्ट भी करेंगे। तो हमने आपसे पूछा और आपने भी कहा कि देखें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ कंफर्मेशन करने के लिए, हमने कहा किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, दोबारा टेस्ट किया, और दोबारा टेस्ट करने के बाद फिर वही रिजल्ट आया जिनका आपने मिलावट की हुई है। बात ये है ना कि मैंने तो अगले बंदे की ईमानदारी पे, जिन घर से मैं लेता हूँ क्योंकि मैं भी ईमानदार हूँ, मैं अगले बंदे को ईमानदारी समझता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने उससे इसी बिना पे मैंने, यानी आपने ये खुद नहीं लिया, खुद किसी आगे किसी और बंदे से लिया है ये वाला? यानी घर से लेते हैं ना, किसी बहाने से वगैरह से माने से लेते हैं। तो ये आपके कहने के मुताबिक उसने मिलावट की? उसने मिलावट की है। अब तो ये मेरा, अब मेरे साथ ये काम हो रहा है, पहली बार मैं लाइव चल रहा हूँ अपना, तो क्या ख्याल मैं उसको जाकर छोड़ूंगा? ऑब्वियसली आपको नहीं छोड़ना चाहिए, और इस तरह के काम से आपको बचना चाहिए ताकि आप मिलावट वाला दूध लोगों को ना मुहैया करें। इसको आप अपने हाथ से ही ज़ाया करें, ताकि जो है नेक्स्ट टाइम जब आप उससे लें और उसे ये बताएं कि वो जो दूध नहीं दिया था, वो नेक्स्ट टाइम मैं उससे दूध लूंगा ही नहीं, ना लें, जो भी करें उसके साथ। लेकिन इस वक्त ये दूध आपको ज़ाया करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी यही पूछा था कि अगर आपका दूध खालिस ना हुआ तो आप ज़ाया करेंगे, तो आपने खुद कहा था कि जी बिल्कुल हम इसे ज़ाया करेंगे। जी बिल्कुल। सर, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये जुल्म है, हम अपनी आवाम के साथ, हम खुद एक दूसरे के साथ जुल्म कर रहे होते हैं, और हम तस्वुर ये कर रहे होते हैं कि हम बच जाएंगे, हम दूसरों को अडल्ट्रेटेड फूड प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि खुराक जो है वो बहुत बेसिक नेसेसिटी है। और इसकी वजह से आपने देखा है कि मुख्तलिफ तरह की अडल्ट्रेशंस, आपको हार्ट के इशूज़, डायबिटीज़, और ये बहुत कॉमन होती जा रही हैं ये चीज़ें, हेपेटाइटिस के इशूज़। तो ये सारा सिर्फ इन लोगों की अडल्ट्रेशन की वजह से देन है, और फूड अथॉरिटीज़ को जहाँ
के तौर पे लेके कर रही है और वो अवाम के लिए कर रही है, क्योंकि सारे इसके बेनिफिशरीज, नेट बेनिफिशरीज वो अवाम हैं। और अवाम को ख़ुद भी मेरी बारहा हमेशा से यही रहती है कि अवाम को ख़ुद जानना चाहिए, उनको ख़ुद कॉन्शियस होना चाहिए कि किस तरह की खुराक उनको चाहिए, उनको जानना चाहिए, उनको अवेयरनेस के लिए ख़ुद कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि खुराक ही से आपका ईंधन है, आपकी बॉडी चलती है, नशोनुमा चलती है जी। तो अगर वही सही नहीं होगी तो आपके लिए ऐसे ही प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो कोशिश करें कि जानें कि आपको क्या लेना है, क्या ठीक है आपके लिए, वो सारी। और इसकी इंफॉर्मेशन एज वेल एज फूड अथॉरिटी इज़ कंसर्न तो उसके सोशल पेजेस पे भी अवेलेबल होती है, प्रिंट मीडिया पे भी फूड अथॉरिटी जो है वो बताती रहती है कि आपको किस तरह से क्या करना है और कैसे आपने फॉलो करना है, ताकि आपको नरिशिंग फूड अवेलेबल हो सके। सही, थैंक यू। नाज़रीन, जिनका सैंपल यहाँ पर पॉजिटिव आया था, उनका एक जो बर्तन था उसमें दूध सही था, जो दूसरा बर्तन था उसमें दूध अडल्ट्रेटेड था, यानी कि मिलावट वाला था, उसमें मिलावट की गई थी, आमेजिश की गई थी, पानी कह लें या किसी भी और चीज़ की मिलावट की गई थी। हमने उसे रीटेस्ट किया, रीसैंपल किया, दोबारा चेक किया ताकि कंफर्मेशन हो जाए, और उसके बाद उन्होंने अपने हाथ से वो दूध ज़ाया कर दिया। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद इमरान। कितों आने पे हो? कादरपुर नामा। कादिरपुर रामा। तो कितना ही खीर है थोड़े को? सर जी साढ़े को है कि 200 लीटर 220 लीटर 220 लीटर। कितों गिन के आते हो? अपना है? हाँ जी, अपना भाड़ा है तकरीबन 100 लीटर आपका भाड़ा है, 100 लीटर नालो चक्की का भाड़ा है। कितने जानवर हैं थोड़े को? साढ़े को सर जानवर है तकरीबन कोई 60 जानवर। 60 जानवर है। दूध खाली से? दूध खाली। गारंटेड? गारंटी। अगर मिलावट साबित की गई तो? सर जो जुर्माना हो। अच्छा, जाया करना पॉसिबल तो कर दिया। नाज़रीन, टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है इनके एक बर्तन से। इनके पास इस वक्त 1 2 3 4 5 6 टोटल बर्तन हैं जिसमें दूध ये लेकर जा रहे हैं, और तकरीबन 220 लीटर दूध है इनका। गैर म्यारी है, और इसमें कितनी ज्यादा गंदगी है बेसिकली इस दूध में। अभी टेस्ट से पहले ही हमने देख लिया है, आपको भी दिखाएंगे कि बकायदा इसमें क्या रिजल्ट आया टेस्ट में। इसका हमने पानी की मिलावट चेक की है, वो ओके है, लेकिन इसमें चूंकि दूध के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि एक सोर्स होता है लोगों के अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा, तो इस दूध को हम ऐसे दूध को हम कतन जो है ना वो मूव नहीं करने देते। इसका दूध हम लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मतलब एक सवाल है कि अगर इसको छान लिया जाए तो ये नहीं होते? छान लेने का यहाँ पे जो है ना वो मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो गंदगी की अमेजिश है वो दूध के अंदर तो डिजॉल्व हो चुकी है। तो छानने से आप वो बैक्टीरियल लोड जो दूध के अंदर एंटर हो चुका। इसके सैंपल किए हैं 27 LR आई है, जो मतलब है मार्जिन पर, लेकिन सही है, इसे हम पास कर देते हैं। पानी की मिलावट ऐसे नहीं है, थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाता है। फॉरेन पार्टिकल्स हैं, तो वो कह रहा है नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करके आऊँगा। और इवन के वो ये भी कह रहा है कि दुकान वाले डिमांड करते हैं आपका मिल्क इतना क्लियर क्यों है, तो ये पार्टिकल्स होना भी ज़रूरी है। फिर हमने उसे बताया कि क्वालिटी से इसकी डिक्रीज होती है, तो इस वजह से नेक्स्ट टाइम ये नहीं होने चाहिए पार्टिकल्स, और सीव करके लाया करें। जो आपका बहाना है यहाँ जानवर है, वहाँ सफाई का कोई सिस्टम नहीं है आपका? नहीं सर, सफाई है, पूरी सफाई है, फिर भी आखिर जानवर है, बैठते हैं नीचे। तो आप जो दूध यानी जो दूध हम पी रहे हैं उसमें इतने ज्यादा डस्ट पार्टिकल, जो बाकी चीजें इसमें तूड़ी भी है सर, ये छन जाए, मिलावट ये छनेगा, बाल में बॉयल होएगा, इसमें कुछ नहीं है। बेशक छन जाए, लेकिन अगर गोबर की मिलावट है तो वो छनने के बाद बिल्कुल है। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप नहीं मान रहे तो। वो बीकर दिखाइएगा, दिखाओ। ये देखें, ये छिड़का वो ही है पत्तों का, घास का। क्या है? ये छिने चल देगा। ये क्या है? ये जरा है, ये थान से जो गोबर है ना, बता दें। खैर है, हम आपको कोई वो नहीं कर रहे, लेकिन माने आप, गोबर है, जरा है, वाकई आया है, बाकी है, लेकिन ये आइंदा नहीं होना चाहिए इस तरह की कोई चीज। ये आप हमारे से कमिटमेंट करके जाएंगे यहाँ? सर जी आगे से इंशाल्लाह नहीं होगी तुम्हारे से कमिटमेंट, जब भी चेक करोगे इंशाल्लाह साफ होगा।
ओके जी, इन्हें वार्निंग दी जाएगी, क्या किया जाएगा? वार्निंग दी जाएगी और हमने क्लीन आउट कर भी दिया है जितना था इनका, लेकिन फिर भी इनको अपने एंड पे वहाँ पे ये कहते हैं जी बाद में दुकानों वाले इसको फिल्टर करेंगे। इसको शुरू से ही नहीं होना चाहिए, और पता नहीं ये होना तो नहीं चाहिए। वो इनकी प्रैक्टिसेस वहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि ये लगता ये है बाज़ार की इंटेंशनली इसमें डाला गया है या केयर नहीं की गई है। सही, सफाई का कोई सफाई का मैकेनिज्म ख्याल नहीं रखा गया। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने घर में ही दूध में की गई मिलावट कैसे चेक कर सकते हैं, मगर इस ब्रेक के बाद। आधा पानी कर दें और आधा दूध करें, तब क्या रीडिंग आती है, तब देखते हैं। आधा टेस्ट ट्यूब को दूध खाली कर दिया गया है और इस टेस्ट ट्यूब में आधा पानी डाला जा रहा है। अब इसमें मिलावट वाला दूध, यानी कि पानी की आमेजिश वाला दूध, 50% पानी और 50% दूध है। 50% दूध और 50% पानी है। अब लैक्टोमीटर को डिप किया गया है, तो अब आप देख रहे हैं कि जो लैक्टोमीटर था वो बिल्कुल अंदर डूब गया है और इस पे रीडिंग आ रही है इस वक्त कितनी? 20 रीडिंग आ रही है। सही, जो हमने पहले रीडिंग की थी उस वक्त इसकी रीडिंग हमें मिली थी 27 और 28 तकरीबन। लेकिन अब हमने आधा पानी मिलाया है और आधा दूध मिलाया है, तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं कि 20 आ गई है। अगर हम इसमें सारा पानी डालते हैं तब क्या रीडिंग आती है वो भी देखते हैं। अब इसमें पानी मिलाया जा रहा है, टेस्ट ट्यूब में सिर्फ पानी है। पानी के साथ लैक्टोमीटर क्या रीडिंग देगा वो भी दिखाते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमने इस टेस्ट को इसीलिए आपको दिखाने के लिए परफॉर्म किया कि ये कितना ऑथेंटिक है ये टेस्ट, और ये लैक्टोमीटर कितना ज़बरदस्त काम कर सकता है। आप इसे घर में भी खुद से परफॉर्म कर सकते हैं, खुद से चेक कर सकते हैं। इस टेस्ट को आप सिर्फ एक लैक्टोमीटर परचेज कर लें, जो कि आपको किसी भी साइंटिफिक स्टोर से मिल सकता है, लेकिन उसका कैलिब्रेटेड होना भी ज़रूरी है। उसे आप इसी टेस्ट से चेक कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि आपका दूध वाला आपको पानी वाला दूध दे रहा है या खालिस दूध दे रहा है। देखें, यहाँ पर जो लैक्टोमीटर था पूरा का पूरा जो है इसके अंदर डूब गया है और कोई रीडिंग नहीं दे रहा। ये था आज का हमारा टेस्ट। उसके अलावा हमने आपको दिखाया कि फूड अथॉरिटी की टीम हमारे साथ मौजूद थी और उनकी अवेयरनेस से हमने ये भी देखा कि जितने दूध वाले हैं वो काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। ड्रम्स भी उन्होंने चेंज कर लिए हैं, काफ़ी तब्दीली नज़र आई है और काफ़ी पॉजिटिव तब्दीली नज़र आई है। नाज़रीन, डॉक्टर वकास क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दूध हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करने में कितना अहम किरदार अदा करता है। डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर अली, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि मुझे अच्छा लगा कि आपने मिल्क की क्वालिटी पे और इसकी उस पर बात की आज, और आपने इससे पहले जो इस पे काम कर रहे हैं और इस पे जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप ये आए। बेसिकली इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो दूध की क्वालिटी का बेसिकली एक्चुअली इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये पहले दिन से ही, लाइफ के पहले डे से ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जो बेबी का फर्स्ट 1000 डे होते हैं ना, पहले 1000 दिन, उसके लिए तो ये मुसलसल ज़रूरी होता है, ठीक है। और उसमें फर्स्ट 4 मंथ तो बेबी की होल जो डाइट होती है, ग़िज़ा होती है, वो तकरीबन दूध होता है, ठीक है, जिस पे वो मदर माँ पे पूरा डिपेंडेंट होता है। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं कि 1 ईयर 2 ईयर के बेबी के लिए फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता जो नेचुरल हमारा फ्रेश मिल्क है उस पर ले आते हैं, ठीक है। और उसके बाद एडोलेसेंट्स पे जब आप जाते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी ये इतना ही इंपॉर्टेंट होता है जैसे प्रीवियस लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसके बाद फिर एडल्ट्स में आ जाता है, ठीक है। और इसकी जो सारी ये इंपॉर्टेंस और ये जो अहमियत है, ये बेसिकली डिपेंड ही इसलिए करती है क्योंकि ये हमारी बोन्स के लिए एज ए रेफरेंस टू कैल्शियम, अगर हम कैल्शियम की बात करें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, बॉडी की कैल्शियम को पूरा करने के लिए, डाइट ग़िज़ा से पूरा करने के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसी दूध में अडल्ट्रेशन की जाए, अडल्ट्रेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो पानी मिलाकर भी हो सकती है, वो कोई केमिकल मिलाकर भी हो सकती है, डिटर्जेंट मिलाकर भी हो सकती है, तब यही दूध जो कि हमारे लिए
सेहत का बायस था वो कितना हेल्थ हैजर्ड हो सकता है? इसमें अगर तो हमारे पास है फ्रेश मिल्क विदाउट एनी अडल्ट्रेशन, ठीक है, वो तो हमारे लिए तकरीबन अगर हम उसमें जो देखें ग़िज़ा है, अज़ा हैं ज़रूरी सेहत के लिए, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ठीक है। अगर तो हमें बिल्कुल विदाउट एनी अडल्ट्रेशन और उसमें मिलता तो वो हमें तकरीबन बॉडी को 60-70% बेनिफिशियल है। बट इन केस ऑफ अडल्ट्रेशन, अगर उसमें अडल्ट्रेशन होती है देन अकॉर्डिंग टू माई व्यू और जो मैंने कुछ रिसर्च देखे उसके अकॉर्डिंग ये है कि वो बॉडी को लीस्ट बेनिफिशियल हो जाता है। इसमें अगर हम देखें कि एक मिल्क में अडल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है, वो सबसे पहले आपके जो बॉडी जिस रास्ते के जरिए उसने जिस्म खून तक पहुंचना है उसके अज़ा ने, वो है हमारा खुराक का निज़ाम, ठीक है। उसने सबसे पहले अटैक जो करना है हमारे खुराक के निज़ाम को करना है, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले वो हमारी टंग को डिस्टर्ब करते हैं, जुबान को। लोगों की अक्सर जुबान जो है वो ड्राई हो जाती है, उसमें स्वेलिंग सी भी आ जाती है, ठीक है, सुजावपन, कट सा, छाले बन जाते हैं। इसमें हमारी वो अडल्ट्रेशन इन्वॉल्व होती है जो डिटर्जेंट्स वगैरह से की जाती है। उसके बाद ये हमारे स्टमक पे फिर इसका इफेक्ट है। फिर हमारी जो छोटी आंत है जहाँ से इसने ब्लड में शामिल होना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट है, ठीक है। तो ये जब हम ये होल देखते हैं सिनेरियो, इसके अंदर जो मिल्क है वो ओवरऑल आपकी सिर्फ बोन्स को नहीं पूरे एक ग़िज़ाई निज़ाम को डिस्टर्ब करता है। उसके बाद वही अडल्ट्रेशन आपके ब्लड में जाती है। ब्लड में जाने के बाद वो चीज़ आपके मुख्तलिफ बॉडी के ऑर्गन जो हमारे अज़ा हैं, लीवर है, गुर्दे हैं, हमारे किडनीज वगैरह हैं, जो हमारा उनको डैमेज करता है। और ये वन बाय वन करता जाता है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अडल्ट्रेशन और फिर उसकी इंटेक ये एक डेंजरस है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है और वो उनको उसकी हैंडलिंग का पता नहीं होता, वो कैसे हमारे तक पहुंच रहा है, अडल्ट्रेशन का कोई आइडिया नहीं होता, तो वो उसको ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद ये फिर एक एक करके वन बाय वन करके बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करता है, जिसमें कुछ ये है कि आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन भी देखने में आई है, जो स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी लीवर हो जाता है उसमें, क्योंकि लोग रात को दूध पी के। हाँ जी सब यहीं पर मैं ये पूछूंगा, हमने कुछ ऐसी भी चीज़ें देखी हैं जिनमें बाकायदा तौर पर डिटर्जेंट का यूज़ हो रहा है ताकि उस पर फोमिंग का इफेक्ट आ जाए, फोम और झाग बन जाए, प्योर उसके लिए डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं। वो डिटर्जेंट जो हम कपड़े धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए, हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब वो हम इनटेक कर रहे हैं तो क्या नुकसान होगा? डिटर्जेंट देखिए ये केमिकल है, और जब हम डिटर्जेंट्स और केमिकल्स की बात करते हैं तो ये कोई बेनिफिशियल चीज़ नहीं होती कि हम कहें कि इसके कोई मतलब हेल्प होगी। ऑब्वियसली इसके ज़्यादा शेयर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो मोस्ट कॉमन इसका साइड इफ़ेक्ट्स है ना, वो ये है कि स्टमक में अल्सर, ठीक है, एसिडिटी, गैस, ठीक है, इन्फ्लेचुलेंस, मरोड़ वगैरह हमारी बॉडी के अंदर वो पैदा होते हैं, क्योंकि दूध में फाइबर होता है जो हमारी बहुत ज़रूरी है, हमारी आंत के लिए जो उसमें माइक्रोब्स रहते हैं जो हमारे लिए सेहतमंद है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बट जब हम डिटर्जेंट्स को, क्योंकि हमारी ग़िज़ा में बड़ी आंत में है फ़ायदेमंद जरासीम जो हमें फ़ायदा देते हैं उन दूध की फाइबर को इंटेक करके, लेकिन जब हम केमिकल इंटेक करते हैं दैन ऑब्वियसली उन माइक्रोब्स तक वो केमिकल पहुँचते हैं और वो माइक्रोब जो बेनिफिशियल हैं वो डैमेज होना शुरू होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोलन कैंसर की तरफ हम जा सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस, हमारी कोलन में अल्सर भी हो सकता है, सुराख जख्म बन सकता है इस वजह से, क्योंकि वहाँ का जो माइक्रोफ्लोरा है, नेचुरल माइक्रोफ्लोरा, वो वीक हो जाता है केमिकल की वजह से, ठीक है। और वो केमिकल जब हमारे ब्लड में जाते हैं देन ब्लड के में फिर अब उनके लिए कोई खास रिसेप्टर नहीं होते जो उनको टैकल करें, मतलब उनको हैंडल करें, तो वो ऑब्वियसली हमारा उसका जो फर्स्टली लोड पड़ता है ना उन डिटर्जेंट्स का, उन एजेंट्स का, केमिकल का, वो लीवर पे पड़ता है, क्योंकि लीवर ने दूध के अंदर जो प्रोटीन है उसको मेटाबोलाइज करना होता है, ठीक है, और वो लोड सबसे पहले लीवर पे जाता है और ऑब्वियसली फिर लीवर डैमेज, इन्फ्लेमेटेड, ठीक है, और इवन हेपेटाइटिस सी की तरह कैंसर जैसी बीमारियां केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, हमारी इस तरीके से ये इफेक्ट्स कर रहे हैं। और इसके बाद एक स्पेशली ये है कि जो दूध की प्रोटीन होती है वो प्रोटीन जिस्म में इस्तेमाल होने के बाद उसको जो बॉडी से रिमूव करवाना होता है वो किडनी ने करवाना होता है फिल्ट्रेट करके, ठीक है। तो उस फिल्ट्रेशन में वो केमिकल्स अगर आ जाएं साथ बाइंड होके देन किडनी पे भी लोड एक पड़ेगा, जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है, ठीक है। इतने सवेर इसके हैं, ये कोई मतलब आप इसको रिलैक्स हम नहीं ले सकते कि ठीक है अगर पी रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये मतलब वही दूध जो एक तरफ सेहत का बायस था, सेहत का मुजिब था, सेहत का जामिन था, वो दूसरी तरफ जानलेवा भी हो सकता है, कैंसर तक की डिजीजेज, हेपेटाइटिस जैसी डिजीजेज उसकी तरफ जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।
नाज़रीन, डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ मोहम्मद सईद लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज की कार्रवाई के हवाले से पूछेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुल्तान के दो दाखिली रास्ते, एक खानेवाल रोड और एक बोसन रोड के ऊपर जो है वो हमारी टीम्स ने मिल्क रेड कंडक्ट किए, जिसमें मुख्तलिफ जितने भी मिल्क से रिलेटेड जितने भी लोग गवाले शहर के अंदर दाखिल हो रहे थे उन तमाम की जो है वो इंस्पेक्शन की गई और उनके मौके पर सैंपल लेके टेस्ट लिए गए, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट परफॉर्म किए गए। जिस तरह आपने मौके पे देखा, उसमें इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग ली गई और उसमें डिटर्जेंट या केमिकल्स की मिलावट के लिए भी उसमें ऑन स्पॉट टेस्ट कंडक्ट किए गए। उसमें तकरीबन आज 2000 से ज़ायद लीटर्स को जो है वो टेस्ट किया गया है, जिसमें तकरीबन 80 लीटर दूध को जो है वो डिस्कार्ड किया गया है, जिसमें मिलावट पाई गई थी। तो ये एक सिलसिला है जो हमेशा हमारा जारी रहता है और हम स्पॉट टेस्टिंग करते हैं और वक्फे से जो है वो हमारी मिल्क रेड्स कंडक्ट किए जाते हैं ताकि मिलावट से पाक दूध को यकीनी बनाया जा सके। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, दूध बेसिक नीड है, हमारे हर घर में जाता है दूध, और ख़ास तौर पर ये जो लूज़ है, खुला दूध, हर घर में ही तकरीबन ज़्यादातर खुला दूध इस्तेमाल करते हैं। तो ये फूड अथॉरिटी कितने अरसे से काम कर रही है इस हवाले से और देख रही है, चेक एंड बैलेंस कर रही है, कोई इस हवाले से हमें बताएंगे? जी, पूरे जनूबी पंजाब में जो है वो अगस्त 2017, पिछले साल 14 अगस्त 2017 से जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी जनूबी पंजाब के तमाम अजला में जो है वो काम कर रही है। उसमें तमाम अजला में जो है वो हमारे ऑफिसेज मौजूद हैं, तमाम अजला में हमारी फील्ड टीम्स मौजूद हैं जो कि तमाम किस्म के जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है उससे लैस हैं और वक्तन फ़वक्तन वो मुख्तलिफ़ किस्म के रेड्स कंडक्ट करते हैं, चाहे वो मिल्क से रिलेटेड हों या बाकी जो कमोडिटीज़ हैं, रोज़मर्रा की खुर्दनोश की अशिया हैं, उनके सिलसिले में भी जो है वो मुख्तलिफ इंस्पेक्शंस और चेकिंग जारी रहती है। दूध जैसा कि आपने खुद कहा कि हर घर की ज़रूरत है, तो ख़ास तौर पर हमारा फोकस जो है वो दूध के ऊपर हमेशा से रहता है ताकि जो है वो इस चीज़ को यकीनी बनाया जा सके कि दूध जो है वो आवाम तक मिलावट से पाक मुहैया किया जा सके। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा इस हवाले से बताएंगे कि जब आपने स्टार्ट किया है, इन स्टार्ट तकरीबन 1.5 साल आपने जैसे बताया कि हो गया है हमें ये सब करते हुए, तो स्टार्ट में क्या सूरत हाल थी और आज जो हम सूरत हाल देखते हैं उसमें कितना डिफरेंस आया? देखें जी, जब पंजाब फूड अथॉरिटी ने अपना काम का आगाज़ किया था उस टाइम पे इस चीज़ में जो है वो हमने सबसे पहले इसकी जो है वो अवेयरनेस के साथ हमने इसको स्टार्ट किया। हमारा मकसद ही यही था कि पहले जो अवाम हैं और जो इस बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी मुंसलिक अफराद हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दी जा सके, उनको अवेयर किया जा सके कि मिलावट जो है वो किसी भी किस्म में, किसी भी कैटेगरी में जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो लिहाजा हमने उनको एक मुनासिब ग्रेस पीरियड जो कि तकरीबन 3 माह का था, 3 माह का हमने ग्रेस पीरियड दिया। उसी ग्रेस पीरियड के दौरान हमने इनकी ट्रेनिंग्स भी करवाई, इनको अवेयरनेस दी, सेमिनार्स कराए, कैंपेन्स कराई और मुख्तलिफ ज़राए से उनको इस चीज़ पे न सिर्फ आमादा किया बल्कि हमने इस चीज़ को यकीनी बनाया कि वो इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि मिलावट जो है वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगी। क्या सर फूड अथॉरिटी सिर्फ इन चीज़ों को पकड़ रही है, ये जो जिस तरह से हमने आज किया कि गवाले जो दूध लेकर आ रहे हैं और अपने बर्तनों में, इनकी जो बेसिक जगह हैं, जो भाने हैं जहाँ पर जानवर रखे हुए होते हैं, उनकी सफाई का मैकेनिज्म क्या है, वहाँ पर किस तरह से ये मैनेज करते हैं? वो लाइफ स्टॉक के अंडर आता है या उसकी मैनेजमेंट देखना आपके प्रेमिसेस में भी है, आपकी डोमेन में भी है? देखें जी, जो प्रेमिसेस कोई भी प्रेमिसेस जहाँ पर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी फूड से रिलेटेड हो रही है वो पंजाब फूड अथॉरिटी के डोमेन में आती है। जहाँ तक भानाजात की बात है, जहाँ इनके डेयरी फार्म्स वगैरह हैं, जो मिल्क रेड्स हम कंडक्ट करते हैं, जो दूध की तरसील हो रही होती है, जिस पॉइंट पे हम उनको इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं, अगर उस मिल्क दूध में किसी किस्म की मिलावट या उसमें किसी किस्म की गंदगी पाई जाती है या अगर उनके भानाजात या उनके जो डेयरी फार्म्स हैं वो साफ़ नहीं होते, तो वही चीज़ जो है वो उनके दूध में भी रिफ्लेक्ट होती है। आज भी आपने इंस्पेक्शंस में देखा होगा, एक आध केस में इस तरह की चीज़ नज़र आई थी कि जिसमें जो है वो दूध की गंदगी मौजूद थी। तो उस चीज़ से साबित होती है कि बड़े कम पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। तो उसको भी आपने देखा, हमने जो है वो लास्ट वार्निंग दी और उसको भी ये चीज़ समझाई कि जो है वो न सिर्फ इसमें एक मिलावट का आंसर नहीं है बल्कि इसमें जो सफाई है, हाइजीन है, वो भी एक ऐसा एलिमेंट है जिनका इन गवालों को या जो
इनके डेयरी फार्म्स हैं, इनके प्रैक्टिस बेहतर करना चाहिए इस हवाले से। अच्छा, ये आवाम की एक परसेप्शन भी बन चुकी है कि दूध में मिलावट करता है दूध वाला, और हमने बहुत सारा सोशल मीडिया पे भी और दूसरे मीडिया पे भी ये देखा कि यूरिया भी और डिटर्जेंट्स भी मिलाकर दूध बनाया जाता है जो केमिकल दूध कहलाता है। उस तरह के कोई केसेस आपके सामने आए पहले? नहीं, देखें अभी तक हमारे पास केमिकल दूध का इस तरह का कोई वो नहीं है। वो हमारे पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनके ऊपर हम प्लान कर रहे हैं, जिनकी इंस्पेक्शंस भी हमने प्लान किए हैं। लेकिन जिस तरह जो अमूमी तौर पर जो गवाले दूध लेकर आते हैं, जो डेयरी फार्म से या भानाजात से लेकर आते हैं, उसमें अमूमन जो है वो पानी की मिलावट पाई जाती है, या तो क्योंकि जो एक केमिकल से बनाया गया दूध है वो एक शायद टेक्निकल चीज़ है, उसके पीछे कुछ माफियाज हैं जो सरगर्म हैं, वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। जो गवाले हैं या जो गांवों से लेकर आते हैं उसमें वो दे आर नॉट बेसिकली, उनकी क्रिमिनल इंटेंशंस नहीं होती, वो शायद क्वांटिटी बढ़ाने के लिए या गर्मियों में जो है उसको शायद ठंडा रखने के लिए बर्फ़ डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है वो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसमें पानी, लेकिन उसमें जो नॉर्मली जो गवाले हैं उनकी इस तरह की इंटेंशंस नहीं है कि वो केमिकल के ज़रिए या कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो करें। हम केमिकल से रिलेटेड सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी इस पर क्लिप्स आए रहते हैं जिसमें जो है वो सिर्फ केमिकल इस्तेमाल करके, डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करके दूध बनाया जाता है। उसके ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ भी हम जो है वो रिपोर्ट्स ले रहे हैं। उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो हमें असिस्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशल ब्रांच है जो वक्तन फ़वक्तन हमें इन चीज़ों के ऊपर रिपोर्ट करते रहते हैं। तो फ़िलहाल अभी तक हमें इस किस्म की कोई चीज़ मुल्तान के हवाले से, जनूबी पंजाब के हवाले से नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि अगर ऐसी कोई भी चीज़ हमारी नॉलेज में आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन द एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इन फ्यूचर फूड अथॉरिटी की क्या पॉलिसी रहेगी दूध के हवाले से? क्योंकि देखें फूड अथॉरिटी की रिसोर्सेज ऑब्वियसली लिमिटेड है, वो हर दूध वाले को हर पॉइंट के ऊपर चेक नहीं कर सकता। तो ये लूज मिल्क जो खुला मिल्क है, इसके हवाले से कोई प्लानिंग या कोई स्ट्रेटजी ऐसी है कि इसको प्रॉपरली शेप में लेके आया जाए? बाय 2020 पंजाब फूड अथॉरिटी का प्लान है कि इंशाल्लाह ताला हमने अपने लॉज में भी इंक्लूड कर दिया है कि कोई भी चीज़ जो है वो मार्केट में ओपन सेल नहीं होगी, चाहे वो दूध है या वो और कोई भी कमोडिटीज़ हैं, दे हैव टू बी रजिस्टर्ड। वो किसी न किसी ट्रेडमार्क से रजिस्टर होंगी और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो उनकी सेल की जा सकेगी, चाहे वो दूध है या और कोई भी चीज़ें हैं। तो बाय 2020 हमने एक उसका मैकेनिज़्म बनाया है कि फिर उसमें जो है वो ओपन कोई भी चीज़ सेल नहीं की जा सकेगी। वो पैकेजिंग में होगी, वो पैकेजिंग में होगी, चाहे और वो एक पास्चराइज्ड मिल्क होगा, जो भी उसके एक स्टैंडर्ड्स सेट हुए हैं उसके तहत वो उसकी जो है वो ट्रीटमेंट होगी और उसके बाद फिर वो पब्लिक की कंजम्पशन के लिए अलाउ किया जाएगा। सही। लास्ट एक और क्वेश्चन में ज़हन में आया कि हमने बहुत सारे ऐसे दूध भी देखे हैं जो कि डब्बों में हैं, टेट्रा पैक में भी हैं, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ टी वाइटनर भी हैं जो दूध है ही नहीं, आर्टिफिशियली दूध है। उसके हवाले से कहाँ खड़ी है फूड अथॉरिटी, क्या कर रही है? देखेंगे इसमें बात यह है कि वी हैव टू डिफ्रेंशिएट मिल्क में और टी वाइटनर में फ़र्क है। ठीक है, टी वाइटनर जो है वो सिर्फ चाय की रंगत को जो है वो के लिए इस्तेमाल होता है, उसका दूध या उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर देखें हमारे ये रूल्स में भी शामिल है कि जो एडवर्टीज़मेंट्स हैं या जो इनकी पैकेजिंग है उनके ऊपर उन्होंने मेंशन करना होता है कि ये दूध है या टी वाइटनर है। जिनका टी वाइटनर है वो उसको दूध मेंशन नहीं कर सकते। और अगर आप अभी टीवी कमर्शियल्स देखें और अगर आप उस पर गौर करें तो जो टी वाइटनर्स हैं दे वुड नेवर क्लेम इट टू बी मिल्क, और जिन्होंने उसको मिल्क क्लेम किया है दे हैव बीन सर्व्ड विद द नोटिसेस, और उन्होंने अभी अपने एडवर्टीजमेंट्स भी चेंज की हैं, अपनी लेबलिंग भी चेंज की है। सिमिलरली इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे घरों में बच्चों को पिलाने के लिए जो मार्केट में दूध समझा जाता है जो कि दूध होता नहीं है, टी वाइटनर होता है, और हम अपने बच्चों को जो है वही टी वाइटनर जो है दूध समझ के पिला रहे होते हैं। तो उसमें मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से आवाम से गुजारिश है कि जब भी दूध ख़रीदते हैं तो लेबल के ऊपर ज़रूर चेक करें, उसकी पैकिंग चेक करें कि उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए कि ये दूध है। और अगेन जो है वो खालिस दूध के मुकाबले में जो है वो कोई भी पैकेजिंग वाला दूध जो है वो इतना मुअस्सर नहीं हो सकता जितना जो है वो एक खालिस सोर्स से ऑब्टेन किया गया दूध होता है। सही सही।
टी वाइटनर दूध नहीं है। ये बल्कि हमने कंपेन भी देखी फूड अथॉरिटी की इस हवाले से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने आपको सारा सिलसिला दिखाया, हमने पूरा एक रेड किया, एक एक्टिविटी की फूड अथॉरिटी का। हमें काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड नज़र आया जिसने ट्रांजिशन लाया है, जो कि गवालों में हमने ट्रांजिशन देखा कि जो कि मिलावट करते थे अब वो काफ़ी बेहतरी की तरफ आ चुके हैं। आगे चलेंगे, आगे भी देखेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद आपको ये बताना था कि जो दूध हम अपने बच्चों को पिला रहे हैं वो उनकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, चाहे वो डब्बे में बंद टी वाइटनर की सूरत में हो या फिर गवाले का खुला दूध। इसको देखना और जांचना हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है कि कहीं हम अपनी नौजवान नस्ल को दूध की शक्ल में जहर तो नहीं पिला रहे। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अली खान और टीम मुजरिम कौन को दीजिएगा इजाजत और देखना ना भूलिएगा हमारा अगला प्रोग्राम।